Good morning. Today we will deal with reaction mechanism in which we will discuss about elimination reactions. कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी सहसंयोजक बंध का बनना या टूटना कार्बनिक अभिक्रिया कहलाता है. What are organic reaction? Making and breaking up of a covalent bond is known as organic reactions. कार्बनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: योगात्मक, प्रतिस्थापन, विलोपन और पुनर्विन्यास. Organic reactions are basically of 4 types: addition reactions, substitution reactions, elimination reactions and rearrangement reactions. Now, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? What are elimination reactions? वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से विलोपित होकर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं. Those reactions in which atom or group of atoms are eliminated from saturated hydrocarbon to form unsaturated hydrocarbon, these reactions are known as elimination reactions. Elimination अभिक्रियाओं में किसी अणु के 2 पास वाले परमाणु से एक सिग्मा बंध टूटकर उनके मध्य एक नया पाई बंध बनता है. In elimination reaction, the 2 sigma bond from adjacent carbon atom breaks to form 1 new pi bond. यह योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती है. It is just opposite as addition reactions. उदाहरण के तौर पर अगर किसी यौगिक से XY एलिमिनेट हो जाए, यहाँ देखिए ये एडजेसेंट एटम है, इनसे 2 सिग्मा बंध टूट करके एक नए पाई बंध का निर्माण हुआ है. विहाइड्रोजनीकरण, dehydrogenation, that is removal of hydrogen. Ethanol on heating in presence of copper at 300 degrees Celsius leads to the formation of acetaldehyde and hydrogen. Here the hydrogen is removed. Hence these type of reactions are known as dehydrogenation. Next, विहैलोजनीकरण, dehalogenation, that is removal of halogen. 1,2-डाइब्रोमोइथेन को जिंक की उपस्थिति में गर्म करें तो इथीन और जिंक ब्रोमाइड बनेगा. यहाँ इस अणु से हैलोजन के अणु का निष्कासन हुआ है, इसलिए इसे विहैलोजनीकरण कहते हैं. Here the elimination of halogen molecule takes place, hence this is known as dehalogenation. Next, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, dehydrohalogenation, removal of HX. Alkyl halide on treatment with alcoholic KOH, it form alkene and HBr. Here HBr is eliminated from the molecule, hence these type of reactions is known as dehydrohalogenation. निर्जलीकरण, dehydration, removal of water. When ethanol is heated at 170 degrees Celsius in presence of concentrated H2SO4, water is eliminated and alkene is formed. Here water is eliminated, hence this reaction is known as dehydration. एल्किल हैलाइड की जब एल्कोहलिक क्षार के साथ क्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनती है. इस अभिक्रियाओं को विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं.
That is, when alkyl halide on treatment with alcoholic KOH, molecule of HX is eliminated and alkenes are formed. These reactions are known as dehydrohalogenation. उदाहरण के लिए 2 ब्रोमोप्रोपेन को अगर एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराएं तो HBr विलोपित होकर के प्रोपीन बनेगा. प्रोपीन, KBr और वाटर. सामान्यतः उस कार्बन को अल्फा कार्बन एटम कहते हैं जिस कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो. That is, carbon atom on which halogen is attached is known as alpha carbon. और उसके साथ जुड़े अन्य कार्बन परमाणु को बीटा कार्बन कहा जाता है. That is, the carbon atom attached to alpha carbon atom are known as बीटा कार्बन एटम. देखिए ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं. So the hydrogen atom attached to beta carbon atom are known as beta hydrogen. 1,2 विलोपन अभिक्रिया में हेलोजन एटम हेलाइड आयन के रूप में निकलता है, जबकि 4 बीटा कार्बन परमाणु से प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है. इस कारण इन अभिक्रियाओं को बीटा विलोपन या 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. इन 1,2 elimination reaction, the halide ion is removed from alpha carbon atom and the proton is eliminated from beta carbon atom. So these type of reactions are known as beta elimination reaction. जब किसी एल्किल हैलाइड में एक ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो उत्पाद के रूप में एक ही एल्कीन बनती है. That is, if only one type of beta hydrogen atom is present in alkyl halide, then only one type of alkene is formed. उदाहरण के लिए देखिए, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, यहाँ पर एक ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन एटम है. ये बीटा हाइड्रोजन एटम है, और अगर इसको एल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीट करें तो ब्रोमाइड आयन इस कार्बन से और प्रोटॉन बीटा कार्बन से निष्कासित होकर के प्रोपीन बनेगा. 2 ब्रोमोप्रोपेन में भी देखिए, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो दोनों बीटा कार्बन पर एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है. तो अगर इन्हें 2 ब्रोमोप्रोपेन को एल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीट कराएंगे तो ब्रोमाइड आयन इस अल्फा कार्बन से और प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से विलोपित होकर के प्रोपीन बनाएगा. एक और अन्य उदाहरण देखिए, 1 ब्रोमोब्यूटेन को अगर एल्कोहलिक KOH के साथ में क्रिया कराई जाए तो ब्रोमाइड आयन अल्फा कार्बन एटम से और प्रोटॉन इस बीटा कार्बन एटम से निष्कासित होकर के HBr निकलेगा और 1 ब्यूटीन का निर्माण. लेकिन यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो उत्पाद में एल्किनों का मिश्रण प्राप्त होता है. That is, but if alkyl halide have more than one type of beta hydrogen atom, then mixture of alkenes are formed, and the alkene is formed in major quantity, which is more substituted. मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन बनती है जो अधिक प्रतिस्थापित हो. उदाहरण के लिए देखिए, 2 ब्रोमोब्यूटेन को अगर हम
एल्कोहलिक KOH के साथ में क्रिया कराएं तो ये अल्फा कार्बन एटम है, देखिए ये बीटा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम है। तो यहाँ दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। तो ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से भी निकल सकता है और प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से निकल सकता है। तो अगर प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से निकलेगा तो 2 ब्यूटीन बनेगा, और अगर प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से निकलेगा तो 1 ब्यूटीन बनेगा। तो इफ alkyl halide on treatment with alcoholic KOH on dehydrohalogenation forms more than one alkene, then the alkene is formed in major quantity which is more substituted. अगर किसी एल्काइल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से एक से अधिक एल्कीन प्राप्त होती है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी जो अधिक प्रतिस्थापित होगी। देखिए यहाँ ब्यूटीन में 2 प्रतिस्थापी है जबकि 1 ब्यूटीन में एक ही प्रतिस्थापी है, इसलिए ब्यूटीन 81% बनती है और 1 ब्यूटीन 19% बनती है। इस नियम को हम सेटजेफ का नियम कहते हैं। दिस रूल इज नोन एज सेटजेफ रूल। विलोपन अभिक्रियाएं 2 क्रियाविधि द्वारा हो सकती है। दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय 2 मैकेनिज्म, E1 एंड E2। E1 क्रियाविधि, E1 मैकेनिज्म, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप किसी एल्काइल हैलाइड के हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ तो ये CH बॉन्ड टूटेगा और हेलोजन एटम हैलाइड के रूप में निकलेगा और कार्बोनियम आयन बनेगा। फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, so it is rate determining step। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन इज फॉर्म and in second step the base abstract proton and form alkene, and this is fast step। So slow step is the rate determining step। चूंकि मंद तथा वेग निर्धारण पद में केवल एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग ले रहा है, अतः यह एक प्रथम कोटि की एक अणु अभिक्रिया है। That is, in first step only rate of reaction depends on the concentration of alkyl halide, hence it is of first order kinetics, so it is known as E1 reaction, that is unimolecular elimination reaction। उदाहरण के लिए तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जब जलीय अल्कोहल में KOH के साथ क्रिया करता है तो आइसोब्यूटीन बनाता है। When tertiary butyl bromide on treatment with alcoholic KOH, in first step the bromine atom is removed as bromide ion and forms tertiary butyl carbocation, and this tertiary butyl carbocation in second step base abstract proton from beta carbon atom and forms alkene, that is isobutene बनेगा। द्वितीय पद तीव्र पद होता है जिसमें क्षार बीटा कार्बन से प्रोटॉन का निष्कासित करके एल्कीन बनाता है। यहाँ पर वेग केवल एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। Here the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide, hence it is unimolecular elimination reaction represented as E1। चूंकि SN1 अभिक्रियाओं की भांति
इवन अभिक्रियाओं में भी मुक्त कार्बोनियम आयन बनते हैं। अतः इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होगा। एज सिमिलर टू SN1 reaction, E1 reaction also forms free carbocations, and the order of reactivity of alkyl halide for E1 reaction is as follows. That is, 3-degree alkyl halide shows E1 reaction rapidly than 2-degree alkyl halide, and 2-degree alkyl halide shows E1 reaction rapidly than 1-degree alkyl halide. मुक्त कार्बोकैटायन के कारण E1 अभिक्रियाओं में भी पुनर्व्यवस्थित उत्पाद बनते हैं। That is, due to free carbocation in E1 reaction, rearranged products are formed. For example, देखिए 2-bromo 3,3-dimethyl butane. This is 2-bromo 3,3-dimethyl butane. अगर इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराएं तो फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप, in which the halogen atom is removed as halide ion and carbonium ion is formed. This is secondary carbonium ion, and this secondary carbonium ion rearranges to form tertiary carbonium ion. So as we know that 3-degree carbocation is more stable than 2-degree carbocation, and in the second step the base abstract proton from this carbon atom leads to the formation of alkene, that is 2,3-dimethyl 2-butene बनाएगी. Next is E2 mechanism, E2 क्रियाविधि. यह अभिक्रिया एक ही पद में संक्रमण अवस्था के माध्यम से संपन्न होती है. This reaction takes place only in one step by forming transition state as shown below. देखिए यहाँ पे ये बेस है जो कि एल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया कर रहा है और ये मंद पद है, ठीक है, और संक्रमण अवस्था बनाता है. तो बेस क्या कर रहा है? प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, हेलोजन एटम हैलाइड के रूप में निकल रहा है और एल्कीन बन रही है, BH एल्कीन और हैलाइड आयन. दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पर अभिक्रिया का वेग एल्काइल हैलाइड और क्षार दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए एथेनॉल में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड व सोडियम इथॉक्साइड की अभिक्रिया E2 अभिक्रिया से संपन्न होती है. दैट इज व्हेन ethoxide ion act as a base, it eliminates proton from beta carbon atom, and this halogen atom is removed as halide ion to form propene. देखिए यहाँ से बेस ने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कोहल बना लिया, ये ब्रोमीन एटम ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल गया और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर के एक पाई बॉन्ड का निर्माण. Rate of reaction depends on both concentration of alkyl halide as well as on the concentration of base. So this is bimolecular elimination reaction. अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर 2 है, इसलिए इसे हम बाइमोलिकुलर E2 रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. Now E1 व E2 व SN2 अभिक्रियाओं में भी इसी प्रकार से एल्काइल हैलाइड अणु पर क्षार का पीछे से आक्रमण होता है. दैट इज, चाहे आप E2 रिएक्शन लीजिए चाहे SN2 रिएक्शन कीजिए, दोनों में जो बेस है दैट इज बेस अटैक फ्रॉम द रेयर साइड. बस
अंतर क्या है कि E2 अभिक्रिया में बेस बीटा कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में बेस अल्फा कार्बन पर आक्रमण करता है and form substituted product. So we can say in E2 and SN2 reaction, the base attacks from the rear side of the alkyl halide. In E1 reaction, base attacks on beta carbon atom to extract proton, and in SN2 reaction, base attacks on alpha carbon atom to form substituted product. अतः E2 अभिक्रिया की सदैव SN2 अभिक्रिया के साथ प्रतिद्वंद्वता पाई जाती है. So this is all about elimination reaction and its mechanism. Thank you.